उसकी फीलिंग्स आपको जेन्युइन लगती थी? Who had more stronger connection towards you, Harshit or Vishu? आई थिंक हर्षित डेड, और क्या पता मैं बोल सकती हूँ कि मेकर्स की चॉइस थी वैसे उसको निकालने की और वट एवर। आपको पता है कि मुझे बीच टास्क में निकाला गया है। क्यों? मतलब मुझे बीच टास्क ने मेकर्स ने निकाला है क्योंकि उन्होंने बोला प्रीत को हटाओ वरना प्रीत किसी को जाने नहीं देगी। तो मुझे ये लगता है कि सब एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। दैट्स सो स्टूपिड। आई थिंक इस बार का स्प्लिट्सविला उठाया लड़कियों ने ही है, चाहे कुछ Definitely, without a Wars doubt. are not even seen anywhere. दूसरे डोमिनोज को निकलवा दिया। दिस इज अनफेयर। Yes. आई थिंक मैंने जाके मेकर को बोला था ये। सो अगर आप मेरे से ऐसे पूछ रहे हो कि वो डरा हुआ क्यों था जब मैं आई, क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत पता है। मुझे उसका गांव पता है, वो कहाँ रहता है पता है, ये सब पता है। उसके कांड? हाँ, मतलब उसके सारे कांड भी पता है, सब कुछ पता है। What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and आज आ गई है धाकड़ लड़की। भाई जिस लड़की का मेरे को इतने टाइम से इंतजार था, आज फाइनली वी आर मीटिंग हियर इन बॉम्बे। This girl was one of the best girl in Splitsvilla this season. Genuinely मेरे को दिल से इस बंदी को इतना प्यार आ रहा था ना भाई यार, but now she is here, मजा आ गया यार। Welcome Preet. Thank What's you up? so much. What's up guys? What's up? How you up to? All good bro, Yeah. and really looking forward for this podcast यार। मतलब बड़ा Yeah, टाइम से मेरा that's you are great. genuinely मतलब मेरे को ना बहुत ही पसंद है आप। Thank मतलब you योर so एंटायर जर्नी एंड जो लास्ट वाला जो जाने वाला सीन होता है, मैंने यार झलक तेरे को नहीं रोकना चाहिए था यार। झलक जैसे रोने लगी वैसे तो रोने मेरे को रोना आ गया। मैं क्यों झलक के ऊपर क्यों मैंने प्लान भी कर उसको बोला था झलक मत कर यार, मैं बह जाऊंगी यहाँ पे। let it be. So yeah, it was fun. But your entire journey in Splitsvilla, you know, felt like a bro code वाला vibe ना, मतलब I Yeah. genuinely kind of felt that. But how are you? How's your life? I'm good. Life has changed completely. I think after splits, जहाँ मैं अच्छी खासी इंसान ना इंस्टाग्राम देखती थी ना कुछ, यहाँ 24 घंटे बस इंस्टाग्राम ही देखना पड़ता है। I'm like done kind of. Nice. But it's fun. It's fun. It's Nice, fun nice. when people recognize you for, you know, people recognize you that, oh, you are Preet, you're Preet. Yeah. That's crazy. I Yeah. think that's what I care about. Yeah. So life, like you know, from your entire angle, as in sense, your parents must be really proud of it, no? Yeah, they are. They were. My brother, he texted me yesterday. He's like, bro, I'm so proud of you. Wow. And that's crazy that everyone is calling me from your name. And that's crazy. You Wow, know? wow. That's like, that's what we grow up for. Yeah. Like, people should know us Exactly. as a person. But फिर भी, I think that लोगों को थोड़ा चूक हो गई है उस चीज़ में. They don't know about me and the person I am. Yeah. Show has showed me in some other way that I'm very Yeah. disappointed about. But it's okay. So what do you think? You know, would if you would have gotten chance to go back and change something, what would that be? I think I would have been more pretentious. I think nowadays people are liking that. So bro, अगर if you would have gotten chance to go back and probably change something, so what would that be? I think I would have been more pretentious because I think audience वही पसंद कर रही है, जो लोग ड्रामा करके दिखा रहे हैं उनको audience ज़्यादा पसंद कर रही है. So I think yeah. Are you eternally that pretentious? No, not at all. I was like this in the entire show. I'm still like this and I think I'll be like this after I die also. So yeah, I am. मैं ऐसी इंसान हूँ. आर या पार में जो मेरी मम्मी कॉल करके कहती नाउ तो तू अब इस फिल्म में थोड़ा तो एक्टिंग कर ले. मैंने बोला थोड़ी भी एक्टिंग नहीं आती है मुझे, पार हूँ मैं इस चीज़ से. So yeah. So bro, what went wrong in your entire journey in Yeah. Splitsvilla? What do you think? Like चलो pretentious हम हो सकते थे, but connections level पे do you think you know you could have changed something? But initially you were with Saurabh, then Harshit, then Yeah. Vishu. I mean everyone got to know. Obviously you had so much of good connection Yeah. with him, but वो बाद में इतना blast हुआ और बेचारा जब उसने कन्फेस किया बेचारा आप निकल गए. I was like वो रो इसलिए तो नहीं रहा था कि shit यार अब मैं इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं इसलिए तो नहीं. वही हुआ उसके साथ ऐसे. देखो अब लोग मुझे कह रहे हैं डोरा दी एक्सप्लोरर ऑन द इंटरनेट. इट्स सो फनी. डोरा के मुंह में मेरा मुंह लगा के वो दिखा रहे, ठीक है, बट लोग समझ नहीं पा रहे कि मैंने कनेक्शन नहीं बदले हैं. कनेक्शन या तो निकल गए या तो उनने मेरे पे फ्लिप किया. व्हाट इज माय प्रॉब्लम? आई डोंट गेट दैट. पहला जो कनेक्शन था आयुष, उससे बात देखो मैं ऐसी बंदी हूँ ना, आई विल नॉट सेटल फॉर like bare minimum. Yeah. And I say that to all the girls that do not set for bare minimum. उठो, जो एफर्ट लगा रहे हो उसके लिए एफर्ट लगाओ वापस, ऐसा सीन है. तो आयुष मेरा पहला कनेक्शन वो था, बढ़िया हमारी बातचीत हो रही थी पहले पहले, फिर वो मेरे से भिड़ने लग गया. फिर मैंने बोला चल कनेक्शन थोड़ा देखते हैं अलग सा, वो निकल गया जब तक. Then I changed to Saurabh. Now Saurabh flipped on me. Where is my problem in that, right? I was, अगर मेरे साथ खेलता तो मैं बढ़िया खेलती. हर्षित के साथ मैं पक्का फिनाले तक जाती अगर वो बंदा रहता, बट उसको शो वालों ने निकाल दिया क्योंकि उसने मारपीट की. हमें पता था कि वो जाएगा ही जाएगा.
अब वो निकल गया, मैं कहाँ जाऊँ, आई हैव टू प्ले माई गेम, नो आई हैव टू बी ऑन द शो। अगर मैं नहीं रहती शो में तो फिर मैं शायद सिमरन जैसे बाहर हो जाती या क्यों ना जैसे निकल जाती है, वट एवर। आई थिंक आई प्लेड माई गेम वेरी स्मार्टली। फिर विशु, जब तक विशु पे बात आई मैं ही निकल गई मैं क्या करूँ। आई थिंक आई न्यू दैट विशु काइंड लाइक मी समवेयर, और मैंने उस पर ये बात बोली, अब तू जान, अब अगर तुझे लग रहा है कि लोग मतलब यू नो सब कह रहे हैं कि तू आइडल मैचेस सुजैन के साथ, तो कोई बात नहीं, तू उसके साथ खेल। इफ यू थिंक यू आल्सो हैव टू विन द गेम, प्ले। बट ही स्विचिंग ऑन मी, कैमरा के पीछे आके मुझे कह रहा है कि मैं तेरे साथ ही खेलूँगा, तू चिंता मत कर। मैं बोला चल ठीक है। फिर कैमरा के आगे कह रहा है नहीं नहीं मैं तो सुजैन के साथ ही खेलूँगा। वहाँ मैं क्या बोलूँ, मेरा गुस्सा निकलेगा फिर सीधा मुक्का आएगा, उसे तो मैं कुछ बोला ही नहीं। दैट्स वाई एक क्लिप होगा जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तेज़ फटी हूँ। हाँ, यस। इसी बात की प्रॉब्लम थी कि अगर तुझे बोलना तो सीधा मुंह पे बोल, मैं नहीं एक्सपेक्टेशन रखूँगी तेरे, तू कुछ और कभी कुछ और। सो या आई थिंक इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। मतलब वो तो प्रैंक है, मतलब ही वाज सपोज्ड टू डू ए प्रैंक, वो उसने फिर दिल की बात ही बोल दी उसने। एग्जैक्टली, एंड ट्रस्ट मी मुझे पता था वो प्रैंक है, आई न्यू दैट वाज अ प्रैंक, बट ही वॉज सो क्लोज टू मी। मैंने बोला चल कोई ना, 10,000 की तो बात है, स्प्लिट वंस की ले ले। मैं बन गई फूल, आई बिकेम अ फूल, इट्स ओके फॉर यू, आई कैन डू दैट। बट ही डिड नॉट टेक इट लाइक दैट। उसने बहुत ही मतलब बुरा करा। आई फील उसको सीधा मुंह पे बोलना चाहिए था। इफ यू आर अ मैन विद बॉल्स, जस्ट से इट ऑन योर फेस, दैट्स इट। But you know, while you were going, उस time पे विशु was there, he cried as well, you know, उसके बाद में, like you know, after you have gone, so मतलब that is something we still don't know कि वो किस लिए रोया, वो इसलिए आपके जाने की वजह से रो, oh shit यार, अब तो प्री पीछे निकली, वो सुधार नहीं रही, अब मैं क्या करूँ, दोनों से लड़ाई कर ली, was that the reason? I don't know, जहाँ तक मैं जब बाहर निकली उसने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा जब तू गई, तुझे नहीं जाना चाहिए था, आई विश हम लोग साथ खेलता whatever। अब पता नहीं इंसान की उसकी फीलिंग्स आपको जेन्युइन लगती थी? या आई मीन जो वो मे बी, अब देखो मैं अगर कोई मुझे एक रोज़ भी दे दे रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा भाई दैट्स टू क्यूट, आई मीन दैट्स टू क्यूट, तो मैं वैसे इंसान ही। तो क्या पता उसकी फीलिंग, क्या पता वो ऐसी गेम खेलने के लिए हर जगह रहना चाह रहा था, आई डोंट नो। बट ही डिड मी डर्टी। मुझे ऐसा लगता है कि उसको सीधा बोलना चाहिए था जो भी था, जो भी फील किया उसने, वट एवर। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे आजकल के। बट आप लोगों ने कन्फ्रंट किया है द बैक एंड बाद में? या आई टोल्ड हिम कि तुझे जो भी था तो ऐसे बोलता ना मुंह पे, व्हाई यू बीइंग सच लाइक माउस और समथिंग, जस्ट से इट। अगर तुझे नहीं खेलना तो बोल नहीं खेलना, तुझे यहाँ भी रहना है, वहाँ भी रहना है, ये भी करना है, वो भी करना, दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। तो इसने बोला कि who had more stronger connection towards you, Harshit or Vishu? I think Harshit did, because after meeting me Harshit came out of his comfort zone a lot. Yeah. ठीक है, a lot। मैंने उस बंदे को पूरे सीजन बात करते हुए नहीं देखा। जब उसने मेरे से बात की, हमने बहुत ज़्यादा यू नो अंडरस्टैंड किया ईच अदर को, वट एवर। तो उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ, आई थिंक इसके अंदर है फीलिंग्स, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ऐसा लाइक नम रहा था, वट एवर, है फीलिंग्स बंदे के अंदर। तो अगर बस यही दिक्कत हो गई कि अगर वो मारपीट नहीं करता, और क्या पता, मैं बोल सकती हूँ कि मेकर्स की चॉइस थी वैसे उसको निकालने की और वट एवर, तो उसको निकाला गया। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी वेरी गुड लाइक कॉम्पिटिशन, ही वॉज अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन टू एवरीबडी, पर उसको मौका नहीं मिला। एंड सेम फॉर मी, आई थिंक मुझे मौका नहीं मिला। जब हम दोनों ने साथ खेला, यू कुड सी दैट we actually dominated most of the contestants. One of the best task was जहाँ पे वो sand वाला task, जहाँ पे you know pull वाले, yeah, that was bang on man. That was crazy. Yeah. It was like वो हम दोबारा खेलने गए थे, if you know. Yeah. 2 बार ही गए थे खेलने, but वो दूसरा वाला दिखाया नहीं। We went against Anushka and Mohit वैसे। Okay. Yeah, and that time you won't believe I was on my periods and it was my first day. Oh. And I was like I'm dying, मुझे अभी बेहोशी हो रही है, बट आई एम लाइक कुछ भी करके ये तो अब मैं डोमिनेट करूँगी। अब ये मेरे जॉनर का गेम है, मैं कूदते फानते बॉल नहीं फेंकती, इट्स अबाउट स्ट्रेंथ। कम आई शो यू व्हाट स्ट्रेंथ इज। जैसे अभी लास्ट टास्क जो मैंने खेला था जब मैं निकलने से पहले दैट डे, उसमें भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। आई डिडंट लाइक वहाँ 5 लड़कियाँ मुझे हटा ही नहीं पा रही। Exactly. That was भाई, मतलब single handedly you nailed that task. And सब लोग, I was looking भाई, अगर प्रीत ने पकड़ लिया है, निहारिका को यू आपने पकड़ लिया था, मेरे को लगा कहीं उसकी आपने इतना दबा दो कि वो सही में। और आपको पता है कि मुझे बीच टास्क में निकाला गया है। क्यों? मतलब मुझे बीच टास्क ने मेकर्स ने निकाला है क्योंकि उन्होंने बोला प्रीत को हटाओ, वरना प्रीत किसी को जाने नहीं देगी।
और मुझे जो गुस्सा आया वहाँ पे, मैंने बोला कि आप लोग को ये फेक गेम मैं नहीं खेल पा रही हूँ, मेरी लड़ाई हो गई करण कुंद्रा से कि ये फेक गेम मैं आप लोग को नहीं खेलूँ। आई स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि आई वाज सो एंग्री कि मैं या तो कुछ फोड़ूं या तो रोऊं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो मैं रो रही वहाँ पे। देन सनी मैम टुक माई साइड, शी टोल्ड द मेकर्स दैट व्हाट इज दिस, लाइक लेट हर इन, शी इज प्लेइंग हर गेम। तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। और मतलब वो पूरा वन साइडेड था टूवर्ड्स द अदर गैंग। Yes. क्योंकि एक पॉइंट था जहाँ मैं निहारिका को पकड़ के साइड कर दी थी। इट वॉज नॉट अलाउड। व्हाट इज दैट? इट्स अ गेम। तुम गेम के जैसे खेलो। अनुष्का निकली, उसको यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी। यू नो इट्स अ गेम। Yes. तुम साइन करके आए हो इस चीज़ में, देन व्हाई यू क्राइंग अबाउट? मेरे पैर में इतना बड़ा मार्क है अभी भी फ्रॉम स्प्लिट्स। एक लकड़ी मेरे अंदर घुस गई थी। आई वाज सिटिंग देयर और क्राइंग और व्हाट? नो, व्हाई यू बीइंग सच अ सैडी? कम ऑन, वेक अप Man, but अभी स्प्लिट्सविला से बाहर आने के बाद, like you know, you can see a lot of chaos happening around in a lot of sections. What's this? Like you know, what's your take on what's I happening? think everyone is just cloud chasing, that's it. सबको ऊपर जाना है, सबको ये लग रहा है कि अभी निकले स्प्लिट से, मुझे इंस्टा फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स से बहुत कुछ हो रहा है। बस यही कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे से किसी की बीफ है भी नहीं तो जोर ज़बरदस्ती उंगली मेरे ऊपर ही आएगी। आई डोंट नो व्हाई एंड आई एम आउट ऑफ दिस। I don't cloud chase. I'm not meeting people and sitting with them or making videos just to कि उसके followers मेरे हो जाओ, whatever. मैं ये करती नहीं और ना मैं करूँगी। I'm happy. Zalak is my best friend. I'm happy. I'm going to Thailand. I'm going to Goa. I'm having fun. That's all it's about. I think. तो मुझे ये लगता है कि सब एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। That's so stupid. And it's only for the limited time. उसके बाद में तो Of course. relevancy खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करोगे तुम? फिर किसके ऊपर चढ़ के तुम फायदा उठाओगे? Let's see. Let's see that. So, but ये जब रूरू, योगेश और आकांक्षा वाला डिबैकल हुआ था भाई, उस टाइम पे तो मतलब उसके बाद से आई थिंक स्प्लिट्सविला का जो टीआरपी है एंड एवरीथिंग वेंट ऑन अ डिफरेंट एंड स्टिल इट्स रनिंग, जहाँ पे इतनी सारी फियास्को चल गया, जहाँ पे रूरू नाउ शी हैज सेड दैट कि भाई हम सब तो प्लान नहीं कर रहे थे, मैं और योगेश, हमारा तो ब्रेकअप पहले से हो रखा है, एंड नाउ योगेश इज मीटिंग आकांक्षा सेपरेटली बाहर भी एंड ऑल दैट। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक कि अंदर भी यू हैड सम सेंस कि ऐसा कुछ? No, I thought कि Yogesh is quite into Ruru after she came, but Yogesh was into Akansha also when Ruru was not here. So I don't know what they were doing. मुझे नहीं समझ आता ये सब game and all this planning, plotting. I just don't know. But I feel कि the point is that मैंने आकांक्षा को देखा, like the glow in her face, then Yogesh was there and everything. एंड देन योगेश टॉकिंग अबाउट कि यार मुझे इसकी याद आ रही है, तुम लोग एक साथ हो, ये है वो है। एंड देन रूरू आने के बाद, ओ रूरू आई लव यू। आई डोंट गेट मेन मेंटालिटी एनी मोर, इट्स वेरी डिफरेंट। बट या आई फेल्ट लाइक बैड फॉर आकांक्षा। आई थिंक हम चाहे मे भी अलग साइड से भी थे, बट उसको पता है कि हम उसका कितना साइड ले रहे थे, बिकॉज बीइंग अ गर्ल यू शुड नॉट, मतलब अगर कोई तुम्हें एक होप दे रहा है लाइक कि यार इसने तो ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, और लड़की आती ही अगर इंसान फ्लिप कर रहा है, सो आई विल फील बैड अगर मैं उसके जगह होती। एब्सोल्युटली, फॉर श्योर। या सो दैट्स इट। आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं समझ आता इन लोग का गेम एंड ऑल दिस डर्टी पॉलिटिक्स एंड शिट। आई डोंट नो। एंड ये स्प्लिट्सविला तो 5 महीने पहले शूट हो चुका है, तो अब ये तब की बात पे अभी मुद्दा उठ रहा है, लाइक क्लाउड। अब बताओ, डज इट मेक सेंस? जब बात खत्म हो गई तुम तीन लोगों के बीच में, हो गया सब ड्रामा, why you running behind it again? Clout. सब एक दूसरे से ले रहे हैं clout. I think that's what they are living on right now. खाना पीना छोड़ चुके हैं ये लोग भाई, इनको बस clout चाहिए। That's all. I think, yeah. But Akansha's journey from she has been the top of the news. स्प्लिट्सविला जब भी बात होती है तो हमेशा आकांक्षा एकदम टॉप पे रहती है. She came from 12,000 followers and अभी 2.2 million. This is unreal. That's unreal, I know, right? I go crazy thinking about it, like what is it about? But मैंने बहुत सारे rumors सुने हैं कि MTV आकांक्षा का PR करवा रहा है और MTV ने ये किया, I don't know, मैंने सुना है, but क्या पता, like she got that sympathy from people, like I'm telling you, अगर मैं लड़की होती उसकी जगह मुझे भी बुरा लगता. Exactly. So maybe that's the sympathy she got. But that's good. I mean, good for her. Yeah. It's very good for her. Very good. And are you in touch with her? No, like whenever I meet her, we are like chill with each other, but not like I don't text her every day because I don't like the people around her. I don't like Suzanne at all. I don't like that girl. She's like the most fake ass bitch ever.
and I don't like her at all. मतलब randomly just like texting me, you are a side character, whatever, that's stupid. You are a 20-year-old kid, just behave like a kid. Yeah. If I'm not beefing with you, why are you coming up and beefing with me? True. That's the point. True. Who do you think, like, you know, currently after you, or probably, you know, till the time you were there as well, अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट कौन खेल रहा है गुल्लू में? मतलब सॉरी, गुल्लू में बोल रहा हूँ, स्प्लिट्सविला में. मैं आंसर ही दे दिया. I think yeah, I think Gullu is playing. Gullu Kaira दोनों बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं. अच्छा. Very strong competition. Kaira is an amazing performer and even Gullu Yeah. because वो करके आए ये, so Exactly. they are, मतलब उनका फोकस ही, मेन फोकस ही गेम है. बट कायरा को, यू नो, हाउ, बिकॉज गुल्लू है इसलिए कायरा को सपोर्ट हो जाता है कि हाँ गेम कैसे खेलना है एंड ऑल दैट. नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक कायरा इज अनदर पर्सनालिटी. अगर गुल्लू के बिना भी कायरा को देखोगे तो तुम कायरा को ही देखते रहोगे. यस I यस feel. यस यस. So I think she's very strong as a person. तो I think वो दोनों का spark was like big. Very big, very big. And अभी के टाइम पे, you know, we saw like you, Zalak, Kaira and Khushi. जो ये गैंग था, is that still intact? Yeah, of course. I mean, we go meet each other, we go out partying and everything. It's just that कि कायरा अभी थोड़ी दूर है because she's staying far away, so we just cannot meet her all the time. और फिर मैं यहाँ बाहर यहाँ तो वो हो जाता है. साला मेरे घर के पास रहती है तो कभी भी उठ के she comes to meet me. Even खुशी stays very far from my house. Okay. तो वो प्लान करते करते इतना टाइम ही नहीं मिलता कि प्लान करे, बैठे, मिले. But yeah, I think we still have the same respect and the same love for each other like we had Nice. inside the show. And we do not meet each other for clout. That's the thing. Wow. But with Zalak, what has happened? You know, जो Goresh earlier was with Zalak, फिर वो आकांक्षा की तरफ चला गया. Now, you know, he's going to podcast. वहाँ पे कह रहा है कि, you know, he has more feelings towards Akansha than Zalak. अगर उसको दोबारा वापस जाने का मौका मिलता तो वो probably शायद आकांक्षा को चूज करता rather than Zalak. तो what do you think? ये मतलब is that good in sense of Zalak के साथ सही हुआ है? No, not at all. कैसे सही हुआ? मतलब ये तो बहुत again boys. I don't know what to say. बट फिर ये तो बहुत स्टूपिड है. मतलब सबको झलक की आंखों में दिख रहा था कि झलक वाज सो इनटू गौरीश. और गौरीश को बस उसके साथ रहना था बिकॉज दे वर नॉट एन आइडल मैच. लाइक गौरीश को आकांक्षा के साथ रहना था बिकॉज दे वर एन आइडल मैच और वो नहीं बने. तो तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो गई जैसे आइडल मैच बदला. तो इससे समझ आता है अनदर डिस्कशन दैट दिस इज नथिंग फॉर रियल. दे डू इट फॉर, मतलब सबको पता होगा अंदर कि बाहर जाके ऐसे दिखने वाला है, बाहर जाके ये दिखेगा, सो लेट्स डू दिस. सो दैट एंड आई थिंक झलक इज लाइक रियली वेरी नाइव फॉर ऑल दिस. शी इज़ वेरी नाइव. काश उसको पहले पता होता कि गौरीश ये कर रहा है क्योंकि उसको पता है ये ऐसे दिखेगा. झलक स्टिल क्राइड फॉर दैट गाय इवन आफ्टर कमिंग आउट. मे बी शी हैड दिस फीलिंग्स फॉर हिम. बाहर आने के बाद भी उसने बहुत कोशिश की कि उसके साथ इन टच रहे बट वो बंदा नहीं रहा. सो दैट्स नॉट हर प्रॉब्लम, दैट्स हिज प्रॉब्लम. शी लॉस्ट, आई मीन ही लॉस्ट अ डायमंड. आई थिंक अगर उसके साथ रहता थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. This time we also saw कि girls going so violent ना. अरे मतलब इस बार तो लड़के जितने violent नहीं हो रहे उतने. मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगती है, आई मीन गो गर्ल. आई थिंक इस बार का स्प्लिट्सविला उठाया लड़कियों ने ही है, चाहे कुछ. Definitely, without a Boys doubt. are not even seen anywhere. वही एक ही चीज़, घोड़ा है तू, भैंस है तू, ये है तू, वो है तू, इसी में ख़त्म हो गया इनका गेम. एंड वी वर लाइक एक्चुअली competitive. We were actually fighting for, you know, for everything. Yeah. Like we really wanted. I think this Literally is for the girls. दीक्षा and आकांक्षा तो literally fought. Yeah. मतलब slapped each other. अरे मतलब what do you think, like उस टाइम पे तो you were there as well ना? Yeah, I was there. देखो उस टाइम पे I felt very bad for आकांक्षा क्योंकि of course चाहे जो भी बात हो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था inside the villa and everything. But हाथ उठाना is something else. You just can't go and slap Literal someone. fight थी मतलब. Yeah, it was like a literal brawl. लोग एक दूसरे पे चीज़ें फेंक रहे थे और उसके आकांक्षा से मुंह से खून निकल रहा था. I was like literally वो कर रही थी मैं क्या बोलते हैं उसको, दवाई लगा रही थी. Man. But I felt very bad for आकांक्षा whatever. दीक्षा चाहे जो भी है यार, लड़कों की बात अलग है, वो मारपीट करे वो सह लेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, whatever it is. But ये मारपीट I don't think it was needed. It was unnecessary.
एंड देन उसके बाद में जनरली ऐसे आई थिंक ऐसा होता है ना कि जो भी कोई फाइट होती तो जैसा हर्षित के साथ हुए थे, हर्षित को यू वर सेइंग कि यू नो स्प्लिट कॉइन्स एंड ये सारी चीज़ें हटा दी सिमिलरली उसके, बट डू यू थिंक कि फ्रॉम स्प्लिट्सविला पर्सपेक्टिव फाइट्स होनी ही चाहिए कि बिकॉज अब बंदा निकल नहीं रहा है, फाइट तो कर रहा है, तो आई थिंक यू नो एज एन एग्जाम्पल वो तो गलत सेट हो रहा है। ऑफ कोर्स ऐसे ही होना चाहिए। देखो अब दीक्षा और आकांक्षा की फाइट हुई, ठीक है, वट एवर, आई थिंक मेकर्स को थोड़ा और कैड़ा, आई मीन लाइक थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्शन लेना चाहिए था, बट दे डिड नॉट। हर्षित की बात आई तो उन्होंने दूसरे डोमिनोज को निकलवा दिया, दिस इज अनफेयर। यस आई थिंक मैंने जाके मेकर को बोला था ये कि वाई यू डूइंग दिस, लाइक अगर आपको खेलना है तो फेयरली खेलो, बट ही वाज लाइक तू मत बीच में पड़ एंड ऑल दैट। फिर नेक्स्ट टाइम मैं भी निकल गई तो इससे पता लगता है कि मेकर्स के अगेंस्ट मत जाओ, वो तो करेंगे जो उनको करना है एनीवेज। बट आई थिंक इट वाज वेरी अनफेयर। अगर तुम्हें ये तुम किसी को बोल रहे हो कि तुम्हारा कार्ड ले लिया जाएगा बस और स्प्लिट कॉइन ले लिए जाएंगे, तो लोग मारपीट करेंगे ही। And bro, what about that idol match that you went to, you know, while you were going, उस time पे विशु and you went for that, that was the last lifeline that you had. सब लोग आइडल मैच बन चुके हैं जो आइडल मैच थे भी नहीं, बट जो आइडल मैच थे यू एंड विशु विच वी फाइनली थॉट कि होंगे, बट वहाँ पे नहीं हुआ। तो डू यू थिंक दैट कि दैट वाज टोटली अनफेयर कि मतलब? Of course that was unfair. I think that was written because they wanted to take me out. That's why you'd see on show में उस एपिसोड में I was the last one who was asked कि you want to pair with who? Yeah. If you notice, right? Yes, and my only मैं तो अनुष्का और मोहित से इतनी क्लोज भी नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में, बट आपने देखा होगा मुझे उनको चूज करना पड़ा बिकॉज द होल विला वाज अगेंस्ट देम एंड दे जस्ट न्यू कि वो पूरा उनको ही यू नो वोट करेंगे और उनकी वजह से आई विल गो आउट। दे जस्ट न्यू इट। एंड देखो जो पहले आइडल मैच नहीं थे वो फिर बने, लोग दो बार बने, लाइक व्हाट इज दिस, इज लाइक व्हाट, लाइक 5-year-old गेम और व्हाट। तो मैं ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं विशु को आगे से नहीं बोल रही कि ब्रो लाइक आई वांट टू प्ले विद यू और व्हाटएवर, आई वांटेड विशु टू टेक दैट स्टैंड फॉर मी, वरना मेरे को फिर लोग आके बोलते कि तुमने ये बदला वो बदला व्हाटएवर। तो उसने जब स्टैंड लिया, आई हैड दिस लास्ट लाइफलाइन कि जाओ ऑरेकल के सामने, लेट्स सी इफ यू आर एन आइडल मैच। आई एम प्रीटी श्योर हम थे एन आइडल मैच, बट दे जस्ट डिड नॉट लेट अस। देयर आर सो मेनी पीपल हु टोल्ड मी दैट वी वर लाइक श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी एन आइडल मैच, लाइक श्योर, बिकॉज सुजैन ने 2 दिन पहले जब वो टास्क हो रहा था प्रैंक वाला, 2 दिन पहले सुजैन ने बोला था कि तू कोई बात नहीं, तू जा प्रीत के साथ खेल ले उसके साथ, बट मुझे सारे स्प्लिट कॉइन्स दे दे। व्हाट इज दैट? अगर तुम्हें पता है कि तुम ओ माई गॉड यू हैव फीलिंग्स फॉर दैट गाय, देन यू आर यू लिविंग ऑन स्प्लिट कॉइन्स? डेफिनेटली नॉट। ये ना लोगों को समझ नहीं आ रहा। पीपल आर जस्ट लाइक assuming things on what people are putting on Instagram. Notice it, you will literally know it कि क्या चल रहा था। In that line, you know, you were standing at last, first, second, Exactly. and then third happened with you. Like, you know, they asked you to. I was just thinking कि यार ये तो फिर गलत unfair हो गया ना? Yeah. मतलब साफ साफ ही पता चल रहा है। Exactly. तो I think that was. I know they just wanted me to get out because I did not have a match to play with, but yeah. But you know, one of your earlier connections जहाँ पे सौरभ you know had earlier said that you know he had feelings for you, and then उसके बाद में you know he पूरा पलटी मार लिया, फिर then you know he started playing with निहारिका, and then सौरभ का बाहर भी जो चीज़ हुई है that is totally like you know मतलब मुझे तो स्वेटी लग रहा है क्योंकि मुझे पता था वो बंदा ऐसा ही है। मालूम था वो बंदा ऐसा ही है, मुझे पता था। अगर वो 9 साल के रिलेशनशिप को ऐसे एक क्या क्लाउड और करियर के वजह से छोड़ सकता है, तो फिर मैं क्या ही इंसान हूँ। 2 दिन में उसने ये बोला कि भाई आई एम गोना प्ले विद यू दिस दैट, एंड द नेक्स्ट डे इज फ्लिपिंग ऑन मी। आई जस्ट लाइक न्यू व्हाट काइंड ऑफ अ गाय ही वाज एनीवेज। और फिर मुझे पता था कि बाहर आके ये बिकॉज वो आकांक्षा का 2 भाई है जो भी है, तो उसको उससे क्लाउड तो मिल ही रहा है ना। Exactly. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू टेक हिज स्टैंड, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट ही एक्चुअली डिड in real life. मतलब the whole show did not show कि उसने क्या बोला है कैमरा के पीछे या कैमरा के सामने भी, और क्या बातें करी है, दिखाया ही नहीं। अगर सबके बीच में यहाँ कैमरा लगा होता ना तब पता लगता, सबकी असलियत निकलती वैसे ही। I swear to God, I swear it is like so. I was so done कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँ तो करूँ क्या, मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ जब मैं कुछ बोल रही हूँ और फिर भी अगर लोग मुझे बोल रहे झूठ बोल रहे तो I just knew what happened. I was there 45 days.
I know God saw it, I saw it, and the person who's doing it saw it. उससे ऊपर ज़्यादा explanation ही नहीं है इस बात की ना. डू यू थिंक कि स्प्लिट्सविला में रहने के लिए ना हाईली एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? लाइक पीपल लाइक हर्षित कुड नॉट स्टैंड. या स्प्लिट्सविला होने के लिए आई थिंक तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्टिंग करनी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा. क्योंकि और कोई लोगों को पता ही, जैसे अभी खा रहे हैं नॉर्मली खा रहे हैं, जैसे कैमरा शुरू हुआ ऐसे खाएंगे. यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट? इट्स क्रेजी, क्योंकि लोग बहुत वहाँ एक्टिंग कर रहे थे कैमरा के सामने, एंड आई कुडंट डू दैट. एंड आई ऑल्सो थिंक कि अगर यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड इफ़ यू वांट टू गो टू स्प्लिट्स, डू नॉट थिंक अबाउट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो 3-4 लोगों को ही लेके जाएंगे आगे जो ऑलरेडी फेमस है, जो ऑलरेडी कोई शो करके आए हैं or whatever. So if you are planning to do it, I mean, just sit and cry about it because it does not make sense. I'm so sorry. No problem. Yeah. Bro, how did you get selected for Splitsvilla? मतलब सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है कि मैंने देखा कि आपके ना बहुत सारे कमेंट्स में यार कि दीदी we like you, young girls are really liking or adoring you. I think that'll be great if they get to know, like, probably. Yeah, it's crazy, मतलब I had no clue. I was working in a school as a school admin. नॉर्मल इंसान, कुछ नहीं, खाना पीना काम जिम ख़त्म. So there's this production house I reached out to. I was like, अगर स्प्लिट्स का ऑडिशन हुआ just let me know, I'll just try. So I just tried and जैसे I knew गुल्लू पहले से, so मैंने उनको यही बात बोली कि I know people from Roadies, I partied with some people who are from the industry and everything. So they were like okay. और फिर just that I think I went for another interview in Bombay, and after that I had the same day I had a flight to Thailand. Okay. So I went to Thailand and they called me after a day that you're in. I was like, what am I? Are you like serious that I'm in? Like, yeah. I'm like, okay, that was like very smooth. You never gave an audition? I gave an audition. No, I gave an audition to the production house also, and the audition to the main channel also. So there were 2 auditions. There were 2 I gave. auditions. Yeah. Oh wow. Was that tedious? What was that? The process, the entire process was? No? No, not really. It was very like, that's what I'm saying. It was so smooth. I didn't know that. I did not know that. But yeah, of course, it depends on your personality and how you come out. Yeah. जैसे मैंने ऑडिशंस में बोला कि मैं ऐसे गुस्से वाली हुई हूँ, मैं नहीं हूँ. मैं शांत इंसान हूँ, बिना बात की लड़ाई नहीं करती. अगर कोई मेरे से भिड़ेगा तभी मैं भिड़ूंगी. If you saw it on the show that I literally do not care if 2 people mature enough are talking, I don't have to go in between them and talk. मैं ऐसी बंदी हूँ. तो I was like ठीक है, अगर थोड़ी सी एक्टिंग करके इन हो गई हो तो बढ़िया. Bro, your and Gullu's, what is the thing? Like पहले से आप लोग जानते थे, like what's the entire story about Gullu that? Yeah, it's just like हम पहले से जानते थे एक दूसरे को. We had a thing like we just like met and all that. We partied and shit like that. And then coming back to Delhi, something happened. तो मुझे बहुत गुस्सा आया था. उसके बाद फिर हमारी बात नहीं गई. It's just that. It's like a very silly thing कि ऐसे इस बात पे लड़ाई हुई गई and then उसके बाद हमारी बातचीत ही नहीं हुई. He was just scared कि मैं बाहर आके उसके बारे में सब कुछ. So अगर आप मेरे से ऐसे पूछ रहे हो कि वो डरा हुआ क्यों था जब मैं आई, क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत पता है. मुझे उसका गांव पता है, वो कहाँ रहता है पता है, ये सब पता है. उसके कांड? हाँ, मतलब उसके सारे कांड भी पता है, सब कुछ पता है मान लो. तो उसको यही डर था कि मैं आऊँगी, गुस्से में आऊँगी और गुस्से में मैं सबके सामने सब कुछ बोल दूँगी. बट मैं इंसान वैसे नहीं हूँ. मैं उस चीज़ से बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकती थी. जब मेरे मेकर्स से बात हुई आफ्टर द शो, दे टोल्ड मी दैट that was your first day, you could have taken a lot of cloud from that thing. But I was like, I'm not that person. I will not put someone down, किसी का पास लेके और whatever लेके कि मैं दिखूं in front of the camera. I think इसको देख के गुल्लू भी बहुत शौक था कि तुझे क्या हो गया, तू क्यों नहीं भिड़ी मेरे से. बोला भाई मैं इंसान अलग हूँ, मैं काम जाती हूँ, ये करती हूँ. Yeah, so just that. Yeah, you were good friends back then. Yeah, we're still good friends. Yeah, still in touch. Yeah, we're still in touch. Nice. He lives near. He's my neighbor only. In Bombay or Delhi? Yeah, in Bombay. Oh, nice. Nearby only. Wow. Okay, bro, this is a rapid fire, and I'm going to give you a few emotions, and you have to tell me, which contestant suits ये emotion जिस पे best suit करता है. Okay, and it has to be very rapid. Okay. Yeah. First, best body. Mohit. Humble. Mohit. Charming. Mohit. Wild. Saundarya. Cute. Zalak. Husband material. Mohit. Aggressive. I think Himanshu. Okay. Mannerless. Suzanne. Cool.
गुल्लू, Joker, सौरभ, best actor and actresses, निहारिका सौरभ, best dress sense, ड्रेस सेंस रॉन, best dancer, बेस्ट डांसर आई थिंक झलक, honest, मी, overactor. सॉरी, Honor तो कोई नहीं. ओवर एक्टर विशु, Okay, witty, विटी दीप्तांशु, show off, आई थिंक सुजैन, fake personality, निहारिका, attention seeker, सुजैन, wannabe, सुजैन, self-obsessed, self obsessed. I think. Oh, I forgot about her. Yeah, Anushka. ओवर एक्ट भी उसी को देते हैं यार, इसलिए मैं इतना हंसी थी उस एपिसोड में. You saw me laughing and then Harshit goes because she was like poking her eyes and crying. Really? तो सोचो मैं वहाँ बैठी हूँ, मुझे हंसी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं सबसे सीरियस सिचुएशन में हंसने वाली इंसान हूँ और वहाँ मैं उंगली डाल के हंस रही हूँ पागल. Oh man. Okay. Arrogant, Arrogant, I think Asmita, desperate, Saurabh, rude, I think Himanshu, okay, insensitive, insensitive Diptanshu, dumb but confident. dumb but confident Suzanne. Oh, nice. That was a rapid fire, bro. That's Okay, crazy. just few quick ones. You have to tell us, like, a line about them. How do you feel about them? Himanshu. He should talk a little less. Baki is a good boy. He's a good boy. Diksha. I don't know, bro. Diksha is also like, she does everything into मतलब उसमें क्या बोलते हैं, बस कर दिया, करने के लिए कर दिया. वैसे उसको थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए. Because अभी जो उसको सब कुछ मिला is because she's just like saying or doing whatever she wants. Yeah. Now that you're in front of the camera, you're in the industry, I think you should think about whatever you're saying or doing. Gullu. सबसे बड़ा पागल इंसान that I've ever met. He's fun, he's good, he's a good person, he's fun, but he's also very like self-centered a little bit. Okay. Goresh. गौरेश हवा में उड़ रहा है अभी बंदा, ऐसे ही फुट के नीचे आया ना, आया और shit, आया ना अभी इसका इंस्टाग्राम Yes, पर. देखो दोनों चला गया ना, दोनों अकाउंट चले गए. I'm sorry गौरेश, I didn't want to say that, but मैं तुझे ये बात बोली थी, जितना ऊंचा गया उतना ही नीचे आएगा तेज. तो Wow. Tain. Tain, I think is very strong. Okay. Sada. She is the sweetest person I've ever met. Wow. Deeptanshu. दीप्तांशु थोड़ा दिमाग कम चलाओ भाई, दुनिया खत्म होएगी एट द एंड ऑफ द डे, तुम भी जाओगे मरने, मैं भी जाऊंगी मरने, सो काम डाउन, ब्रीद. Sandy. Sandy is the wildest creature in this world. I think I love Sadav, Sandy both. They are like very close to me and I love them too much. Wow. Yeah. Wow. Because they're very true. I like people who are true. I don't have to be acting in front of you to be with you. She's like that. Can we see in roadies? Yeah, maybe. Bro, really? Maybe, yeah. Wow. I'm preparing. I hope everything works out. But So I think ये अगस्त में होने वाला है ना? yeah, I think everything should work out. Like I'm thinking I'm manifesting it for sure. We are definitely manifesting it here as well, and जो manifest होता है ideally हो ही जाता है. तो I mean just hope कि Yeah. you will roadies. Let's go. And because Thank you. ऐसा लगता है roadies बना ही like kind of suits your personality much better. Yeah, Like I also think like that. Why did I even go to splits? I'm thinking, but ठीक है कोई बात नहीं. It's just the beginning yeah, of new things. nice. I'm here for a reason, I think. Absolutely, and I think good things like it has already happened, Yeah. and or more better things it takes time. So Yeah. that's why roadies will happen. Yeah, that's This camera, you should tell your audience what's all happening in your life. क्या क्या देख सकते हैं वो, and everything about you, what's gonna happen. अभी तो for फिलहाल मैं स्प्लिट सिला के बाद अभी बहुत मजे कर रही हूँ. I've become gained so much weight, but I don't care. I know I can go back to what makes me stronger. And I'll tell you one thing, guys, do not settle for less. You don't know what's going to happen tomorrow. Be present here right now. Keep smiling. Do not stress about anything because life is this short. So just be happy. Do not stress about anything. And of course, I'm manifesting that I go to roadies for sure, get selected for sure, and then kick some ass. So yeah, love you. Thank you so much, guys. Thank you so much for your bang on her. Loved it, yeah. And for you guys, go follow Preet on her Instagram. Go follow her. Are you on YouTube? No, not yet.
या she'll be soon there on YouTube. जब भी YouTube खोलेगा ये जाने का है, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, भाई प्यार फैलाने का, गंद नहीं फैलाने का, because she is the Exactly. most amazing girl that I found. She is a Dhakad woman and just spread love. Do not spread hate or lies. And bro, but we have a small just That this is thing so for you sweet. guys. Thank you. That is so sweet. Thank you guys. Thank you Bye. for Signing having off, me. Preet. Yo, sayonara.